Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Badi dil se taaliyan nikali for the kind of performance Team Pakistan has put in. Ladies and gentlemen, you guys are tuned in to PTV Sports and are watching Game On and the post-match analysis. Pakistan sealing that victory for themselves as well, where I think that the window of hope is going to open up for all those Pakistanis who are out there as well. But without any further ado, on this amazing evening over here in Pakistan, where all the Pakistanis are literally really happy, I'm very lucky that I've been joined by Ms. Roha Nadeem. Hello Roha, Assalamu alaikum. How are you feeling? Walaikum assalam. Feeling great, Shahzad. Thank you for that introduction and good evening to everyone who's joining us right now on Game On है. अगर आप पाकिस्तान के फैंस हैं तो आप आज बहुत खुश होंगे. इस खुशी का आपने बड़ी देर इंतज़ार किया है. सो आप सबको मुबारक हो. हम लोग भी ऑब्वियसली फेस्टिविटीज़ शहजाद उस तरह की नहीं ऑब्वियसली बिकॉज अ लॉन्ग टाइम कमिंग ये जो जीत आज की थी, लेकिन स्टिल अ लॉट टू सेलिब्रेट फॉर पाकिस्तान. नॉट जस्ट दोज 2 points बट ऑफ कोर्स फ़खर ज़मान बैक इन फॉर्म. आई थिंक हमने इसके ऊपर आज काफ़ी बात करनी है और ये चेंज जो आज किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इट पेड ऑफ. ही वॉज इन सबलाइम टच, और जब फ़खर ज़मान इज़ इन सबलाइम टच, पाकिस्तान आर अ डिफरेंट side. Exactly, and in addition to that, obviously the second highest total partnership of the opening players, not just that, you know, the fourth in terms of we are to talk about the World Cup as well. Yeah. Before this, I think in this World Cup it was Imam and Abdullah. But without any further ado, ladies and gentlemen, let me introduce my wonderful guest over here inside the studios, former Test cricketer himself, Mr. Bazid Khan. Hello Bazid bhai, assalamu alaikum. Wa alaikum. How do you feel today? Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here alongside Mr. Bazid Khan. We're very lucky that we have been joined by the left arm quick representing Pakistan. Ladies and gentlemen, he is Mr. Wahab Riaz. Hello Wahab bhai, assalamu alaikum. कैसे आप? सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. आज आप लोग मुझे और प्यारे लग रहे हैं. ख़वातीन और आज़ाद उन्हीं के साथ बैठे हैं हमारे Mr. Professor, the former skipper for Pakistan cricket team. He is Mr. Mohammad Hafiz. Hello Hafiz bhai, assalamu alaikum. वालेकुम. How are you? बहुत खुश. Thank you so much for joining us. And last but not the least, ख़वातीन और आज़ाद साबिक़ कप्तान पाकिस्तान cricket team, विकेट कीपर बैठा है. ये है Mr. राशिद लतीफ़. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम अस्सलाम. यार आज तो बड़ी बात हुई है, पता है क्या? जी सर. मैन ऑफ द मैच कौन? थैंक यू सो मच. मेरे लिए आज तालियां बजनी चाहिए. सारे कैमरे इधर लग जाएं. जज़ाकल्लाह सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. Fakhar Zaman, thank you so much for making us all proud. I think everybody's happy over here. राशिद सर, लेकिन जब शहजाद का जवाब सही होता है आप तब ही तालियां बजाते हैं. एक दफा तो होता है. चलो यार यार हम टीम थे यार. जो चांद ग्रहण है ना जब होता है तो ये वो है. नहीं, मैंने तो सिर्फ हम सुबह में टीम थे यार. रिमाइंड कराया, बट खैर आज काफी तालियां शहजाद बजी हैं और बजनी चाहिए फॉर द वे पाकिस्तान हैव प्लेड. अभी सबके बारे में बात करें क्विकली. पहले मैच समरी पे नजर डालते हैं, देखते हैं आज के मैच में हुआ क्या. इट वाज पाकिस्तान अप अगेंस्ट बांग्लादेश एट ईडन गार्डन्स, कोलकाता. अ लॉट ऑफ हाइप बिफोर दिस मैच. ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए ये डू और डाई मैच था. ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच था. अगर वो आज ना जीते, जो बात यही हो रही थी कि अगर बांग्लादेश आज नहीं जीते, दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड दे आर इन फैक्ट ऑफिशियली out of the tournament. मैच समरी पे नजर डालते हैं. पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश. बांग्लादेश of course winning the toss and choosing to bat first, losing that first wicket very early on. लेकिन उसके बाद it was Lytton Das with that 45 of 64 जिन्होंने stable किया बांग्लादेश को in those overs. And of course Mahmudullah coming up the order, 56 of 70 from him, and Shakib the captain playing a good knock as well, 43 of 64. Mehdi Hassan Miraz with a 25. Bangladesh putting together 204 runs only. So a good bowling effort from Pakistan to restrict Bangladesh on that number. And of course, looking at the bowling from Pakistan, there's only one man you see up there. It's Shaheen Shah Afridi. The kind of spell that only Shaheen Shah Afridi can bowl in a match like that. 3 off his 9 overs, giving away just 23 runs. Of course, Mohammad Wasim Jr. making the most of this opportunity as well. 3 for him, and of course 2 from Haris Rauf as well. And on the other hand, it was Pakistan's batting that really finished things off smoothly. Abdullah Shafiq with another scintillating knock, 68 of 69 from him. But it was really Fakhar Zaman who chose this night to be back in form. The announcement came in full volume there. 81 runs off 74 balls with 7 sixes in that.
Knock, and of course Rizwan and Iftikhar finishing off that victory, and in the end Pakistan winning by 7 wickets. Exactly. Let's take a good look at the points table, as in where Pakistan is as of now. Well, we have jumped, ladies and gentlemen. That's something which we really need to kind of talk about over here. So Pakistan now stands tall at number 5 at the middle of the table, where Afghanistan was certainly ahead of us as well. We certainly need to talk about the net run rate. We are so close, and it certainly widens the opportunity window for all of us over here back home as well, and for the players who've done a tremendous job against Bangladesh. Maybe a weaker opponent, but at any given day, that's what Pakistan can do. Ladies and gentlemen, I think what certainly Bangladesh will be hoping for is that, that they might be able to make it towards the Champions Trophy, because the top 8 will only end up there. Unfortunately, they're out of this tournament, as Ro has mentioned. But now, very quickly, moving on to Rashid sir. So, Rashid bhai, सबसे पहले Pakistan versus Bangladesh, your opinion, your take on today's game. 2 पॉइंट्स ज़रूरी थे, और यहाँ से होप नज़र आ रही है कि नेक्स्ट मैच अगर जीतता है पाकिस्तान, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। शायद न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का शायद मैच पड़ेगा, और होप अभी बाकी है। मैं अपने शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तान के हैं उनसे भी मतलब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि पूरी कौम एक टीम के पीछे होती है। बुरा करते हैं तो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब अच्छा करते हैं तो लोग प्रेज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बिल्कुल चाहने वाले हैं। और स्पेशली फ़खर जमान 100% रिकॉर्ड उनका इस वर्ल्ड कप में, 3 मैच खेले, तीनों जीते। 3 मैच खेले, तीनों जीते। और आज के मैच में जो हैं वो वापस इन फॉर्म आए। हफीज़, आपसे मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, उम्मीद क्या चीज़ है? उम्मीद, पाकिस्तान की टीम हमेशा से आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं करती, और जब जब नॉकआउट स्टेज आएगी ना, तो पाकिस्तान फिर पाकिस्तान की तरह खेलता है। आज मुझे खुशी है कि मैं ये समझ सकता हूँ इसको कि प्रेशर कितना होगा। मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान टीम डेफिनेटली अंडर प्रेशर होगी कि अगर ये मैच हार गए तो देयर इज़ नो होप। तो उस नॉकआउट स्टेज का प्रेशर जब इन पे पड़ता है तो फिर इनका बेस्ट बाहर आता है। आज जैसे इन्होंने बॉलिंग में स्टार्ट किया, शाहीन ने नए बॉल से विकेट लेना शुरू किए, एक रिदमिक मोमेंट लगी जहाँ पे एक सिंक करती गई परफॉर्मेंसेस एक दूसरे के बाद। फिर जो टोटल हमने रिस्ट्रिक्ट किया, जिस तरीके से हमने लग रहा था कि शायद वो 250 कर जाए, लेकिन जो रोका बॉलिंग एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ राइट एरिया में हिट करके, रिवर्स स्विंग आज नज़र आया। आज वो थोड़ा बहुत जो हम पाकिस्तान की क्रिकेट से देखना चाहते हैं वो नज़र आया बॉलिंग में। फिर जो एक अप्रोच थी टू चेज डाउन द टोटल, आई लाइक दैट द मोस्ट, कि उसके अंदर एक पॉजिटिव इंटेंट था, उसके अंदर खौफ नहीं था कि हम हार जाएंगे। उसमें वो जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि चढ़ के खेले, इन्होंने उस तरीके से बारी ली। और फ़खर जमान, वी ऑल नो हाउ क्वालिटी प्लेयर ही इज़, और जब वो खेलते हैं तो इसी तरह की शानदार इनिंग्स खेलते हैं। और उनका ये जो रेस्ट मिलना उनको ये हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि जो मोमेंटम उन्होंने और अब्दुल्ला ने इस टीम को दिया, उसके साथ साथ वो जिस उम्मीद की आप बात कर रहे हैं, वो उम्मीद हमारे दिलों में दोबारा जाग गई। ये लगातार डाउन चल रहे थे, फिर उसके बाद वो जो प्रेशर पाइलअप हुआ इनके दिमाग के ऊपर, ये सिर्फ मेंटली ब्रेक करना था कि आपको एक ईज डाउन करना था प्रेशर कि हम हर मैच मैंने नहीं खेलना। जैसे ही उनको वो ब्रेक मिली, उनको 2 वीक का मच नीडेड ब्रेक मिला, जिसमें इन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, और वो जो हंगर अंदर दिल के और दिमाग के अंदर होती है उसको दोबारा से इन्होंने जगाया, और इसकी राइट वे में प्रैक्टिस करते होंगे। हो सकता है घंटा 2-2 घंटे एक्स्ट्रा करते हो, तो उसी की वजह से इनका जो कमबैक है ये नज़र आ रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि राइट टाइम के ऊपर उनकी फॉर्म नज़र आ रही है, और अगर ये कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह ये वाली फॉर्म, और ये जो 6 हिटिंग एबिलिटी हमने नहीं में देखी है, जब ये कंटिन्यू करते हैं तो सब चीजें बड़ी स्मूथ। बिल्कुल। आज के मैच में जो है ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी हम क्रिटिसाइज करते हैं जब गलत सिलेक्शन होती है, बट आज बिल्कुल राइट टाइम पे फ़खर जमान को वापस प्लेइंग 11 में डाला गया था। देर आए दुरुस्त है, बट वहाँ ओवरऑल जिस इंटेंट की हमने प्री मैच में काफ़ी बात की थी कि स्ट्राइक रेट के इशूज़ हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान टॉप 4 जो है उनका 2022 ऑनवर्ड सबसे कम स्ट्राइक रेट है अमंग द टॉप 6 टीम्स। आज जो बात हमने सुबह की वो सारा कुछ डिसप्रूव थोड़ा हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन कि पाकिस्तान जो है वो गेम ऑन है देख रहे हैं। देखिए गेम तो ऑन है और काफ़ी देर हो गई है वर्ल्ड कप को कि जब से शुरू हुआ है, लेकिन हम लोगों में प्रॉब्लम यह है कि अगर हम एक मैच में अच्छा कर लेते हैं ना तो हम फिर वापस उन्हीं सोचों में चले जाते हैं जहाँ से हमने शुरू की हो। अफगानिस्तान वाला मसला हमारे साथ भी है। तो प्रॉब्लम यह है कि जो कंटिन्यूएशन हमारी इस मैच में हुई है या जो सक्सेस हमें इस मैच में मिली है वो हमें शुरू से उसी तरीके से खेलना चाहिए था।
नॉट वन मैच कैन टर्न एनीथिंग अराउंड। हमने आज अच्छा खेला, वो हमें अप्रिशिएट करना और हमें करना भी चाहिए कि आज अच्छा खेले हैं। फ़ख्र की बात की थी कि 1-2 मैच रेस्ट करवा दें, उसे वापस लेके आए, जो उसका एक मेंटल बैरियर है जिसमें वो उससे बाहर नहीं निकल रहा। ही हैज़ सीन हिज फेलियर, वो वापस आया, ही स्टार्टिंग फ्रेश। जब वो आए और हमें पता था फ़ख्र जब भी स्कोर करेंगे पाकिस्तान को ही विल गिव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। और स्पेशली अब्दुल्ला की जो इनिंग्स थी दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स एज वेल। मैं कहूँगा कि जिस तरीके से दोनों ने खेला, बेशक 200 रन्स थे, बट यू नो दे नीड दैट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड एट द अप फ्रंट। तो उसके बाद जब पार्टनरशिप लंबी हो गई तो अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि नीचे जो दूसरे प्लेयर्स आए हैं वो भी यही कोशिश कर रहे थे कि हम स्कोर जल्दी जल्दी रन रेट को मेंटेन करने के लिए करें। तो ये चीज़ें 7वें मैच में क्यों, पहले मैच से भी तो हो सकती थी। सो दिस इज़ वेयर वी हैव टू सी कि जो एक चीज़ अच्छी है वो हमें करनी चाहिए और हमें उसे बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। बट ये जो गलतियाँ हमारी थी, जब हमारे में ये कैपेबिलिटी है, इसी बारे में बात होती है, व्हेन वी हैव दिस कैपेबिलिटी व्हाई कांट वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द डे वन। हम क्यों आके हमेशा फंस जाते हैं? हम लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो हमेशा ऐसे रहे हैं, लेकिन दिस हैज टू चेंज। और ऑब्वियसली हम बांग्लादेश से हारे और अच्छी चीज़ है, जीत गए, दैट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, लेकिन हमारे अगले दोनों मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर हम पीछे एक आधा मैच भी जीते होते चारों में से, तो टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट कि वी वर कि हम लोग सेमीफाइनल में जो थे ना वो कंफर्म थे। अभी भी हम इफ एंड बट्स के ऊपर है। चलो वो तो दिस इज ऑल गुड। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से फ़ख्र ने स्कोर किया, प्लस आई रियली लव द वे पाकिस्तान बॉलिंग हैज बोल्ड टुडे। एग्जैक्टली। आज आप ये देखें कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने 25 ओवर किए हैं, 90 रन दिए और 7 विकेटें ली हैं। और अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो दैट वाज सम एक्सीलेंट स्पेल्स ऑफ बॉलिंग, जिसमें आज हमें रिवर्स मिला। और क्योंकि स्केयर इतना ज़्यादा वो था, ड्राई था, और आज जिस तरीके से बॉलिंग की जो लेंथ थी, जो लाइन थी, और विकेट टू विकेट बॉलिंग ज़्यादा थी जो हमें सक्सेस मिली है। सो इट्स गुड कि अभी आखिरी 2 मैच है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, उसमें शाहीन और हारिस रऊफ का भी जो अब वो है कॉन्फिडेंस और अच्छा हुआ होगा। और आई थिंक जो शाहीन को नए बॉल से विकेट मिलती है और पाकिस्तान एकदम से जाग जाता है, वो आज पहले बॉल से ही, उसने पहले ओवर से ही शुरू किया, पहले ओवर से ही वो जागे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी हमें मैचेस में शायद इसी की जरूरत होगी। बाजी भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजी भाई, सबसे पहले ऑब्वियसली योर रिएक्शन ऑन टुडेज गेम। जो वहाब भाई ने सवाल पूछा है, इसका जवाब आपके पास लाजमी होगा कि हम पहले मैचेस में क्यों नहीं कर सके। देखिए, आपने, रोहा ने, राशिद भाई, हफीज़ ने माहौल उठाया, अब उसको वापस भी लेके आना ना। पाकिस्तान में यही है, पाकिस्तान में यही है। आपको उस दिन भी एक मैच जीते हैं तो हम आसमान, उसको वापस भी लाना है। अब एक व्यू पॉइंट ये भी है कि नॉकआउट, मतलब आप जब बिल्कुल सर पे आइए तो पाकिस्तान अच्छा खेला है। एक व्यू पॉइंट ये है कि जी हम जब बिल्कुल नॉकआउट पे आते तब अच्छा खेलते हैं। एक व्यू पॉइंट ये है कि जब हाथ से सब कुछ निकल जाता है तो प्रेशर ख़त्म हो जाता है तब अच्छा खेलते हैं। ये दूसरा व्यू पॉइंट है, इस पर भी गौर करें आप कि अब जो है उम्मीदें मतलब आप पे नहीं है, दूसरी टीम पे, वो आपको पहुँचाए तो पहुँचाए। ये नहीं है कि जब आप फेवरेट थे कि जी टूर्नामेंट में आ रहे हैं, फेवरेट थे, जब सब कुछ आपके हाथ में थे तब आपने नहीं किया, तो आप ये कह देना कि जी आज बहुत अच्छी, यस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सुबह क्या डिस्कशन हो रही थी, टॉप 60 में बांग्लादेश आती है, टॉप 16 में नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, रिवर्स स्विंग भी हुआ है, बॉलिंग भी अच्छी हुई है, बैटिंग भी उसी तरह हुई है। वो आपका सवाल पहले कहाँ था ये? हाँ जी। जब वर्ल्ड कप है, जब आप 4 मैच इकट्ठे हार जाते हैं तो फिर एंड में जाके, मैं अनफॉर्चुनेटली 2019 में भी ऐसे ही हुआ, जब पाकिस्तान सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा था ना, सबसे अच्छी जब क्रिकेट खेला वो, तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। ये आपको याद होगा 2019 में ऐसे लग रहा था एंड मैचेस में कि यार ये चैंपियन होनी चाहिए टीम, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन तब टूर्नामेंट से बाहर था। तो इस दफ़ा भी उसी सिमत में चल रहे हैं कि आपने पहले सारा कुछ गवा दिया, अब आके बहुत अच्छे ऐसे खेले हैं कि यार ये तो टीम ये कैसे हार सकती है 4 मिनट। तो ये मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप का प्रेशर है, प्रेशर रिलीज हो चुका है, अब इनके हाथ में नहीं है, अब आपके हाथ में नहीं है। आप ये तीनों मैच जीत जाओ, न्यूजीलैंड 1 मैच जीत जाए तो आप गए ना, आपके हाथ में नहीं है, तो प्रेशर रिलीज हो चुका है। ये एक वो पॉइंट आप दिमाग में रखें प्लीज़। दूसरा, जो जीत होती है ना, उससे फिर सारा कुछ कवर हो जाता है ना। आज हमने सलमान अली आगा को खिलाया है, उसने बॉलिंग की है नहीं, रिस्क किया है कि आपने फिर छठा बॉलर नहीं खिलाया, ये तो आज तो आउट कर गए आप, बिल्कुल छठा बॉलर आपने खिलाया नहीं, आज तो मैच जीत गए आप, बट बिकॉज जीत गया ना तो अब कोई उस पर बात नहीं करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बिनेशन ही नजर आया जी। तो आप इस कॉम्बिनेशन, मेरा नहीं ख्याल कि इस कॉम्बिनेशन में आप बड़ी टीम के खिलाफ जा सकते हो, क्योंकि आप
के पास फिर बॉलिंग नहीं है ना। मतलब आप सलमान अली आगा को आप कहते हो कि बॉलर, लेकिन उसे बॉलिंग नहीं करवाते, तो इसका मतलब है आपके उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपको बॉलिंग करके देगा। तो ये पेपर मतलब क्रैक्स के ऊपर पेपर करता है। इस बातों को हम बार बार डिस्कस करते हैं। ये तो वही बात हुई ना जो हम सुबह के शो में बात कर रहे थे, रैंक नंबर 1 हो गए थे, ये वो सारा कुछ क्रैक्स पे। ये बहुत अच्छी विक्ट्री है। फ़खर जमान बहुत ज़बरदस्त खेला है, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा हुआ है। रिवर्स स्विंग पहले नहीं नजर आई, आज नजर आई है, सब कुछ अच्छा हुआ है। बट आते आते इतनी देर क्यों? एक चीज मैं सिर्फ ऐड करता हूं, बीके ने जो बात की है, कम से कम हमें इस पे तो खुश होना चाहिए कि जिस तरह की प्रैक्टिस की थी, हाँ, वैसे उन्हीं टीमों के खिलाफ वैसे ही परफॉर्म कर। लेकिन हाँ ये तो है, लेकिन ये सही बात की आपने। लेकिन ये ऐसे है जैसे हमारा आखिरी सेगमेंट हो रहा होता है ना, तो सवाल होता है, हम कहते हैं जी खत्म, आप चलो रिलैक्स। शहजाद फिर सवाल कर लेता है, वो पाकिस्तान टीम में ना आप कहते हैं चलिए पाकिस्तान खत्म, लेकिन वो फिर खड़ी होती है, नहीं अभी नहीं, फिर देखो आप भी टीम का हिस्सा है सर, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। बट यहाँ पे चले, थैंक यू बीके फॉर painting putting that our feet down and for giving us that much needed reality check, because of course आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब हम जीतते हैं बहुत सी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, लेकिन बात अभी यहाँ पे हो रही थी कि इतनी देर बाद क्यों, वाई दिस मैच, वाई नॉट बिफोर, वाई नॉट अर्लियर। एक चीज़ जो पाकिस्तान के लिए थ्रू आउट कंसिस्टेंट रही है इस वर्ल्ड कप में, वो रहे अब्दुल्ला शफीक। जब से उन्होंने अपना पहला मैच खेला है, ही हैज़ बीन स्कोरिंग। अनफॉर्चुनेटली विनिंग कॉजेज में हर दफ़ा नहीं हो सका, आज फिर एक दफ़ा उन्होंने स्टेप अप किया। प्रेशर भी था आज की गेम में, नहीं भी था, तो हर तरह के इस गेम में उन्होंने अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा है। और आज के शॉट्स जो आप उनके थे, क्या कहेंगे आप? मेरे तो मैन ऑफ द मैच सुबह अब्दुल्ला शफीक थे जी। बहुत खूबसूरत शॉट खेलते हैं, और आज एक शॉट उन्होंने खेली है मिड विकेट पे, छक्का जो मारा है, दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों में बन सकते हैं। मैं एक चीज़ अब्दुल्ला के लिए कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला शफीक, मैंने 18-19 साल खुद क्रिकेट खेली और मेरे साथ बहुत से पाकिस्तान के टैलेंटेड प्लेयर भी खेले और चले भी गए, अभी भी देख रहा हूँ। मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा मैच्योरिटी साल 2 साल में आते ही और खेलते हुए मैंने किसी में नहीं देखी। तो जिसको आप टैलेंट कहते हैं, जिसको आप देख के, जिसको आई कैचिंग टैलेंट आपको फील होता है, मज़ा आता है एज ए बैट्समैन, उसकी शेप और उसकी शॉट रेंज देख के, अब्दुल्ला शफीक इज़ वन ऑफ दोज। और मैं यही दुआ करूँगा कि ये फिट रहें, अपने वो जो पाँव नीचे रखने वाली बात है, वो पाँव नीचे रहें, तो आई एम श्योर ही इज़ गोना मेक ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह, एंड ऑल प्रेयर्स फॉर द एंटायर टीम एज वेल। भाई यहाँ पे ज़रा बाज़ी भाई की जानिब एक दफ़ा फिर से बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बाज़ी भाई मुझे लगता है कि आप इन फिगर्स के साथ जस्टिस करेंगे। मैंने बिल्कुल ओपनिंग में भी तस्करा किया कि सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप आज हमें देखने को मिली इन दिस वर्ल्ड कप। वैसे इन टर्म्स ऑफ देखते हैं वर्ल्ड कप हमें 4th हाईएस्ट देखने को मिली। मैं ज़रा वहाँ पे आपसे भी तस्करा कराना चाहता हूँ कि बड़े बड़े नाम हमें यहाँ पर नजर आएंगे, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो भी शायद उनको भी काफ़ी तस्कीन मिलेगी इन नामों को देख के। पहले मैंने अब्दुल्ला और इमाम की बात की, आज फिर मैं उसके बाद बात करना चाहता हूँ, तो उसमें आपके वालिद साहब भी जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह ऑन नंबर 2 मौजूद है। तो जब हम इस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, हाउ क्रूशियल आर दे फॉर एनी टीम्स विक्ट्री, एंड हियर आर द फिगर्स इन फ्रंट ऑफ यू अलोंगसाइड द नेम्स। दूसरे नंबर पे माजिद खान साहब का नाम है, द लेजेंडरी, एंड मोहम्मद सादिक साहब का भी नाम है नीचे, फिर हम अपनी भी देख रहे हैं, तो प्लीज गो अहेड। देखिए मासवा एक सारे एक लेफ्ट एंड राइट है, आखिरी शहजाद और सरफराज नहीं है, बाकी सारे लेफ्ट एंड राइट हैं। तो जो आपने बात की है शफीक और फ़खर की, इसमें रोल्स देखिए, सईद अनवर तेज़ खेल रहे थे, वजाहतुल्लाह वासी थोड़ी बारी लेते थे। फ़खर के आने से ये होता है कि अनड्यू प्रेशर अब्दुल्ला पे नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। फ़खर अच्छा खेल रहा है ना, तो अब्दुल्ला शफीक को चांस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस तरह नॉर्मली जितना खूबसूरत खेलता है वैसे ही खेलता जाएगा, तो उससे प्रेशर रिलीज़ होता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो बीच में हम 3-4 मैचों में फंस रहे थे, वो इमाम और इसकी कॉम्बिनेशन नहीं सही हो रही थी, क्योंकि रन्स एक तरफ से तेज़ रन्स नहीं हो रहे थे। फ़खर का इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके साथ भी वो खेलेगा इम्पॉर्टेंट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, इसका ये इम्पोर्टेंस है कि वो उसका आपको पता है कि इसके रन्स नहीं रुकेंगे। तो जो 7 वाला बैट्समैन है उस पर फिर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, और वो अब्दुल्ला शफीक नेचुरली अटैकिंग प्लेयर है, लेकिन उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाके हिटे नहीं मारनी, क्योंकि वो काम फ़खर कर लेगा। तो कॉम्बिनेशन फिर बड़ी ज़बरदस्त आती है। ये आपने दिखाया, इसमें
जो माजिद खान एंड सादिक मोहम्मद लिखा वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ लिखा, मुझे थोड़ा डाउट है, शायद मैं गलत हूँ, शायद सीलॉन उनको बोलते थे उस टाइम श्रीलंका को, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद। लेकिन वो जितनी भी आप पार्टनरशिप्स देखेंगे ना, उसमें एक ज़रा अग्रेसिव खेलता है और दूसरा थोड़ा सा उससे सेडेटली। दोनों आपको नहीं नज़र आ रहा है कि दोनों अग्रेसिव हैं, दोनों आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि दोनों मतलब एक उस पे खेल जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट भी करना चाहता हूँ। हमने रोहित शुभमन की भी बात की, आपने इससे पहले तस्करा कर चुके हैं कि अगर इमाम सेटल थे तो दूसरे जो बल्लेबाज आए थे मेरा ख्याल है उन्हीं को वो ओनर्स लेना चाहिए था। थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगा कि बाबर जो फिनिश करने की कैपेसिटी रखते हैं, जब फ़खर दूसरे एंड से अच्छी स्ट्राइक्स बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे, 7 छक्के लग चुके थे या 6 छक्के लग चुके थे, व्हाई डू यू थिंक बाबर नीडेड टू स्टेप अप? यू नो, क्या जरूरत थी वहाँ पे? क्या नारेबाजी, जज्बात, मतलब कुछ तो हो गया वहाँ? देखिए, कोई बात तो पहुँचती है ना, कोई बात तो मतलब जो क्रिटिसिज्म आगे पीछे हो रहा है वो इम्यून तो नहीं है। जो बातें पाकिस्तान टीम के बारे में या सिर्फ हम नहीं कर रहे, वहाँ पे भी बहुत लोग बैठे हैं, बहुत सारी दुनिया में इस वक्त तो सारे एक्सपर्ट्स टीवी पे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, सारी दुनिया में। तो हर कोई एनालाइज कर रहा होता है बड़ा क्लोजली, तो कोई असर पड़ा होगा कि नहीं जी। अब जाहिर है आप ने जो मैचेस जीतने हैं, एनएनआर वैसे आप नेट रन रेट पे न्यूजीलैंड को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन आपने इंटेंट वो शो करनी है। तो वो मेरा ख्याल उस जब इतना स्कोर तेज हो रहा था, उनका यही था कि वो भी और तेज करे, कोशिश करे। भाईजान इस पे तारीफ करनी चाहिए। मैं बाबर की तारीफ करना चाहता हूँ कि उसने जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक कोशिश की। आउट ऑन आर डजंट मेक एनी डिफरेंस। आज बाबर ने जो इंटेंट शो किया, आई एम हैप्पी ऑन दैट कि उन्होंने मैच फिनिश करने की जो इंपॉर्टेंस थी कि हम जितनी जल्दी फिनिश करेंगे, क्योंकि हमने 3 में से 4 मैच जीतने हैं जी। 3 तो मैच जीतने और चौथा नेट रन रेट का मैच है। खेल के जीतने ना, तो भाई वो ऐसे ही खेला जाएगा ना, जब तक आप अपनी विकेट को आप चाहते हैं बाबर थल्ले भी खेले तो 100 भी करे, इट डजंट वर्क। मैंने इसीलिए ये स्लाइड आपको दिखाई। मुझे वो कोच याद आ गया ना, अब मेरी बात सुनिए। मुझे वो बचपन का कोच याद आ गया जो मुझे कहता था कि 15 रन एक ओवर में करना और ऊंची शॉट नहीं मारनी। भाई मैं कहां से 15 करूं? तो बाबर का जो आज का इंटेंट है उस पर खुश होना चाहिए कि ही थॉट दैट ही हैज टू प्ले अग्रेसिवली व्हेन इट रिक्वायर्स। इस स्लाइड को दिखाने का मकसद ये था कि जब एक साइड से एग्रेशन आपको मिल रहा है तो दूसरे एंड पे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर वार्नर और हेड की तारीफ क्यों हम कर रहे थे? वो तो दोनों एंड से मार रहे थे। तो अगर आप मार्श की तरफ आए और वार्नर की तरफ आए जो उससे पहले खेलते रहे, मार्श कंट्रोल नहीं खेल रहे थे। अभी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि अगर फखर ने मारा तो अगर ये भी मार देगा तो जल्दी मैच खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ वो बीके भाई की बात पे ऐड कर रहा था 2019 की, तो मुझे याद है हम लोग सिर्फ 2 मैच आ रहे थे बीके भाई पूरे वर्ल्ड कप में, हम रन रेट पे बाहर हुए थे। हम सिर्फ 2 मैच आ रहे थे और उसके अलावा मैच नहीं आ रहे थे। हमने न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड बाकी सारों से जीते थे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज सबसे जीते थे हम। राइट। चले, नेट रन रेट जो है इस वक्त एक बज़ वर्ड है इस स्टूडियो में, इस टूर्नामेंट में। लेट्स सी पाकिस्तान अब अपने अगले मैचेस किस इंटेंट के साथ खेलते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स खाली जिस तरह बीके ने कहा सिर्फ हमारे कंट्रोल में अब नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ अनकंट्रोलेबल्स in this World Cup now and for Pakistan's journey. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं. When we come back, lots more to unpack from this match. तो कहीं मत जाइएगा. गेम ऑन है. खवातीनो साहब, वेलकम बैक. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के हवाले से, जहां पे हमने पहले अपने बल्लेबाजों के हवाले से तो काफ़ी गुफ्तगू की. अब मैं उस एक शख्सियत की बात करना चाहता हूं कि जब भी शुरू में अर्ली ऑन को नए बॉल से विकेट हासिल होती है तो उनका जो एग्रेशन एक नज़र आता है वो नाकाबिले यकीन होता है. अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा ना हो सके तो उनकी फॉर्म में शायद हमें डिप आते हुए नजर आती है. नॉट जस्ट दैट, कंग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर फॉर शाहीन शाह अफरीदी फॉर गेटिंग हिज 100 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स. नॉट जस्ट दैट, अगर महमूदुल्लाह थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए डिफिकल्टी हो सकती थी. मैं सबसे पहले वहाब भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. वहाब भाई, शाहीन शाह अफरीदी आज बॉल भी रिवर्स हो रहा था, बड़ा अर्ली हो रहा था, रादर
दोनों एंड से नया बॉल है, यू नो, सो स्क्वायर के ऊपर हम बात कर चुके हैं, बट द वे ही बॉल, जहां हम पहले भी तस्करा कर रहे थे कि यार विकेट टू विकेट करें, यॉर्कर्स की कोशिश करें, वो सब आज हमें होता हुआ नजर आया। आई थिंक शाहीन, हमें पता है कि हमारा मेन स्ट्राइक बॉलर है और उसका फॉर्म में होना पाकिस्तान के लिए हमेशा से जो है वो दैट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है जो कि ऑलवेज सेट द टोन फॉर द पाकिस्तान टीम स्पेसिफिकली इन बॉलिंग। जैसे ही पहले वो 2 ओवरों में इन्होंने 2 आउट किए तो पाकिस्तान टीम जो थी दे फेल्ट इट कि अब हम मैच के अंदर और हम मैच को पकड़ सकते हैं, एंड देन उन्होंने निकलने नहीं दिया बाहर। फास्टेस्ट टू 100 विकेट्स, कांग्रेचुलेशंस एज आई सेड आर इन ऑर्डर फॉर शाहीन शाह अफरीदी। 51 मैचेस में he's got to this milestone. I think it was wonderful. यहाँ भी शाहीन शाह अफरीदी जितनी तारीफ करे कम। मैं एक सवाल सिर्फ करना चाहता हूँ थोड़ा शाहीन से हट के, वो ये कि हारिस भाई को क्यों लगता है कि डीआरएस ले लेना चाहिए? हर दफा वो बाबर को कन्विंस कर लेते हैं रिव्यूज आया करने में। यार एज अ फास्ट बॉलर यू नो, वो जब आप इतनी ज़्यादा जान लगा रहे होते हो और आप इतनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हो ना, तो एज अ फास्ट बॉलर दैट इज़ वेरी नेचुरल कि जैसे ही बॉल पैडों पे लगता है तो हम सारी खड़े हो जाते हैं कि जी आउट है। ऊपर से यार तो देख के सबको पता चल रहा है, दिस इज हाउ इट इज, क्योंकि वो रिएक्शन जो है दैट रिएक्शन टाइम एज अ फास्ट बॉलर जब आप बॉल करते हैं ना, तो आपका जब बॉल करते हैं तो व्हेन यू बॉल तो आपका सर नीचे को होता है, सिर्फ नजरें एकदम आपकी ऐसे, वो पूरा कंप्लीटली आपके पास विजन नहीं होता। एक बंदा जो सामने यूं खड़ा उसका विजन जरा ज्यादा क्लियर होता है, जो एक थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ है और उसमें इतने फॉलो थ्रू में जा रहा है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है एकदम जज करना कि यार हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर प्लान है। क्यों कप्तान अच्छी चीज है ना यार, दिस इज अच्छी, दिस इज दैट पॉजिटिव एनर्जी, दिस इज दैट पॉजिटिव एनर्जी जो कि दिस इज दैट पॉजिटिव एनर्जी जो कि होनी चाहिए। बहुत दिनों से विकेट कीपर बीच में नहीं आ रहा, तो डीआरएस में बेस्ट जो है ना वो विकेट कीपर से पूछ ले। तो ये बॉलर्स का प्रॉब्लम है, ये मादर के साथ वो मैं यही तो कह रहा जितने भी बॉलर्स हैं फौरन अपने कप्तान के पास जाते हैं कि ले लो। वो एक तो शाहिद आप ये खेल रहे होंगे मैच में, उन्होंने खुद कप्तान नहीं तो खुद ही ले लिया था वो कॉन्फिडेंस जो है ना सब में आई थिंक बहुत ज्यादा ये होता है, खुद से रिव्यू लेने का इफ्तिखार ही लगा है, कहता है हारिस भाई। चले, थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगा मुझे, ये भी अच्छा लगता है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम अपनी टीम में तो मैं सबको भाई कह सकता हूँ, बहुत आला। नहीं, अब दूसरी तरफ आते हैं शाहीन को, जिस तरह से आज सपोर्ट की गई। राशिद सर आपसे मैं बात करना चाहती हूँ मोहम्मद वसीम जूनियर की, जिस तरह उन्होंने स्टेप अप किया, जो लेंथ्स आज वो बॉल कर रहे थे, रिवर्स स्विंग का जैसे उन्होंने यूटिलाइज किया, जबरदस्त स्पेल 3 for 31 मतलब की पिच थी आज पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, क्योंकि जिसपे जोर से हिट नहीं लग रही होती ना, जो रोकते हैं तो रन नहीं बनते, थर्ड मैन नहीं जाएगी, स्क्वायर लेग अंदर नहीं जाएगी, 2 फील्डर आप अच्छे रख लें तो डॉट बॉल बहुत मिलेंगी। ऑब्वियसली ये जो बंगाली प्लेयर्स हैं इनको हमने देखा कि ये थ्रू आउट अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन व्हेन इट वाज दे वर कंपेयर टू द साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, दे नो कि इवन रिवर्स हो भी रहा है तो टैकल कैसे करना। जैसा मैंने कहा था कि एक पार्टनरशिप जो माकरम और मिलर की थी, हालांकि मिलर ने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया था उसमें, फ़र्क ये था कि जब शाहीन और हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे और विकेट भी थोड़ा मुश्किल था, they took their time. Exactly. They didn't go after them. Here they had no other option to go. Exactly. राशिद भाई एज अ विकेट कीपर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो एक और चीज आज ऑब्जर्व की मैच देखते थे, दुख रहा होता है जब आप स्पिलेज देखते, लीकेज देखते हैं ना रन्स का, जब आप लेग स्टंप के ऊपर बॉल करते हैं, फाइन लेग की जानिब जाता है कीपर, 2-4 दफा एफर्ट तो करता है, वो स्पिनर की भी गेंद हो, जब नहीं समझ में आता तो हमने काफी रन्स मेरा ख्याल है डीप की तरफ और यहाँ पे फाइन लेग की कीपर का क्या ताल्लुक उससे? सर मैं ये तो कहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले जज करें, अगर आप स्पिनर की बात करें कि यार हो सकता है कि टर्न मिले, ब्रेक हो बॉल, शायद मुझे थोड़ी प्लेसमेंट अपनी ठीक कर लेनी चाहिए, या ये वो लीकेज है जो रुक ही नहीं सकती? या कीपर की प्रॉब्लम बता रहे हैं आप? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या इसमें कीपर का इशू है या ये रुक ही नहीं सकती? बहुत सारी प्रॉब्लम है कीपर, जब से ये हेलमेट पहना हुआ था उसने, हेलमेट नहीं पहना हुआ था, पीछे तो स्पिनर के अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ, कीपर ने स्पिनर के अगेंस्ट बात हेलमेट पहना था। पूछना क्या चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ ये बोलो, पूछना क्या चाहते हो? जब लेग स्टंप के ऊपर गेंद कराई जाती है, वो फाइन लेग की जाने पीछे खेलने की कोशिश करते हैं, मिस करते हैं, नहीं खेलते हैं, तो पीछे चौके के लिए गेंद चली जाती है, क्या वो रुक सकती है? कभी कभार जाती है, हमेशा नहीं, टच हो जाती होगी, पैड से टच हो जाएगी, क्योंकि कीपर के पास टाइम नहीं है, ब्लाइंड होता है। चलो मैं कीपिंग कर रहा हूँ, हफीज यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ राइट हैंडर है वो बैटिंग कर रहे हैं, ये जब बॉल फेंकेंगे तो मैं इनकी ग्रिप देखूंगा, बॉल ब्रेक की है या सीधी रहेगी। अगर ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर है तो मैं वेट करूंगा कि सीधी होगी तो शायद कॉट बिहाइंड हो जाए, अगर मिडिल स्टंप पे होगी तो मैं ऑटोमेटिकली आइज को लेवल रखते हैं हमेशा, सही है, ठीक है, यूँ नहीं करेंगे आप, यूँ करके जाते हैं और वहाँ से जब थ्रो होती है तो बॉल आपको नज़र आ जाती है, जब नज़र आती है तो फिर आप उसको ऊपर जाते हैं। मोस्टली T20 इतनी हो गई ना, आपकी प्रैक्टिस चेंज हो गई है, आप ब्लाइंड जाते हैं, ज़्यादा ब्लाइंड जाते हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े कीपर्स भी मिस कर रहे हैं,
राइट साइड पे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन राइट साइड पे हो या यहाँ पे हो। इसकी एक वजह जो मैंने इसमें देखी है, इसमें हेलमेट का पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक रिसर्च की थी किसी ने कि हेलमेट से पहले और हेलमेट के बाद के स्टंपिंग चांसेस, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था, क्योंकि कभी कभार आपके हेड होता है ना, आपके लिमिटेड हो जाए, सामने आपके वाइजर आ जाता है, तो वो अब कभी कभार मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड पे होता है। ठीक है। तो आइज़ का लेवल होना, बॉडी का इन शेप रहना बहुत ज़रूरी है आपका। मतलब ये ये आइज़ हो गई, शोल्डर ये साइड हो गई, 2 नीज, और ये पूरा पैरेलल होना चाहिए कीपर के लिए। और कभी कभार रिजवान की अगर बात कर रहे हैं ना, पैड्स अंदर पहनते हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उसमें बैलेंस आउट हो सकता है, क्योंकि आप टाइट किस्म के वो पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, ट्राउजर्स, तो पता नहीं चल रहा, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करती है आपकी मूवमेंट को। ठीक है। राइट, दी एवर सवाल बहुत अच्छा है राशिद भाई। आज टोटल मैच में पता है कितने बाइज हुए हैं? 0। इसीलिए उसने पूछा। नहीं यार ये शहजाद के साथ देखो, मैं आपके साथ एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई मसला नहीं। ये देखो विकेट कीपर ने इन किया मुझे, ये क्लास देखो ना, मैं इन हो नहीं रहा था, मुझे इन किया इन्होंने। Thank you. Thank you. ये देखो, Thank you sir. Thank you for the partnership as well. Well, the ever so analytical Rashid Latif. यहाँ पर एक short and sweet break लेंगे. When we come back, we'll talk a bit more about the bowling performance of Pakistan. Stay tuned. All right, ladies and gentlemen, welcome back from a short and sweet break as well. Once again, because the bowling department has done phenomenally well. हम बल्लेबाजों के हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस के ऊपर हम जरूर आज आपसे बात करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर प्रीवियस गेम्स में देखते हैं, इज बिन रियली एक्सपेंसिव. Not just that he wasn't really expensive today as well. We got us those 2 wickets which we needed well in time. Do you think that going deeper, क्योंकि यहाँ पे शायद वसीम और हसन अली के ऊपर तो सवाल होगा. आज आपने सुबह में ये बात की थी कि जी अब हसन अली जो है वो यहाँ पे हमारे पास बेटर ऑप्शन थी, वसीम के साथ जा रहे हैं, सो वी आर नॉट श्योर. जो आपने कॉन्फिडेंस की भी बात कर दी, रिवर्स की बात कर दी. हारिस रऊफ गोइंग डीपर इनटू दिस टूर्नामेंट, डू यू थिंक दैट ही विल हैव ओनस ऑन हिम टू गेट अस दोस विकेट्स 10 पावर प्ले के राइट आफ्टर? देखिए बिल्कुल, आई बिलीव के ही इज समबडी जो कि ही इज अ स्पेशल बॉलर. फॉर्म का ना लगना इज समथिंग डिफरेंट, बट ही हैज़ बीन अ स्पेशल बॉलर फॉर पाकिस्तान. और पिछले कुछ अरसे में जितना पाकिस्तान ने जीता है उसमें इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हारिस की. बिल्कुल, हारिस रऊफ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. यू नो देयर इज सो मच दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी, जब उनको नहीं वो अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल रहे होते तो हारिस रऊफ हैं जिनकी तरफ हम देखते हैं. बट शहजाद, अगर आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें, यू नो फ्रॉम द बॉलिंग लाइनअप दैट वी हैव, very impressed today by, जिस तरह हमने बात की, मोहम्मद वसीम जूनियर, he saw the opportunity, he took it, and I think यही बात हमारे पैनलिस्ट भी ऐड करना चाह रहे हैं कि I think options जहाँ तक हैं, बेंच स्ट्रेंथ की जितनी हम बात करें पाकिस्तान के लिए, सही मैच में सही यूटिलाइज किया था. वहाँ what do you have to say on हारिस स्पेल ऑफ कोर्स, एंड देन ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट जो किया गया था. बाइस की बात है, हम 5 वाइडें भी शायद भूल के जी प्लीज. नहीं देखिए, मैंने कहा कि हारिस का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था, और ऑब्वियसली ही वाज लैकिंग फॉर्म. ही इज़ अ वेरी स्पेशल बॉलर. पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस में ही हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल. और ठीक है, इस टूर्नामेंट में आए वो फॉर्म नहीं थी, प्रॉबली हो जाता है, लेकिन आज इस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की. ऑब्वियसली यू नीड सम सपोर्ट फ्रॉम द फ्रंट. आज शाहीन ने जब आउट किए तो ही गॉट दैट सपोर्ट, तो उसमें उनको रिवर्स बहुत अच्छा मिलता है. एंड आज क्योंकि शुरू से जब आपने विकेटें उनकी गिरा दी थी, द प्रेशर वाज ऑन. पहले 10 ओवर में हम 3 पावर प्ले में आउट कर चुके थे, जिसकी हम पूरे वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे कि यू नीड टू स्ट्राइक विद द न्यू बॉल. और आज हमने जब 3 आउट किए तो ऑब्वियसली द अदर टीम वाज ऑन द बैक फुट. लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, द प्लान लुक वेरी गुड. विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करते रहे, मेक दम गैस करते रहे. आज ज़्यादा कट बॉल्स नहीं थे, ज़्यादा ड्राइव वाले बॉल नहीं थे, मोर हिटिंग, मोर लेंथ कर रहे थे, सपोर्ट मिल रही थी. बाउंस था थोड़ा सा विकेट में, कैरी अच्छा था, वो उसको उन्होंने किया. फिर जब बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ, रिवर्स होना शुरू हुआ, तो दे हिट द राइट लाइंस. सो दिस वाज अ कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस जिसको हम कहना चाह रहे थे एज अ यूनिट. और हमें आज इसलिए भी अच्छी लग रही थी क्योंकि ऊपर से आउट कर गए. बिल्कुल, तो वो प्रेशर नहीं था कि पहले 10 ओवरों में हमारा एक अप भी आउट नहीं है या हमने एक आउट किया हुआ, और बैट्समैन जो है वो सेट खेल रहा है 30, 40, 50 रन में, एंड दे आर कमिंग आफ्टर यू, और शॉट्स लग रहे हैं. दैट इज़ अ बिग डिफरेंस. बट ओवरऑल जो भी आज डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग था पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग का, वो बहुत अच्छा था. एग्जैक्टली जी राशिद भाई, बात फिर वहीं स्पिन की आ जाती है. हम लोग सुबह काफ़ी डिस्कस किया कि हमारे स्पिनर्स आउट नहीं कर रहे. इफ्तिखार ने अच्छी बॉल की, 10 ओवर में 44, 1 विकेट. उसामा 66, दोनों ने मिल के 110 रन दिए हैं 20 ओवर में. क्या आगे जाके मतलब शादाब वापस आते हैं या नवाज वापस आते हैं, ये स्पिन डिपार्टमेंट की बात ही हमारी
वहीं वीकनेस आ रही है। ये तो टीम फंस गई, समझो ना। हम कह सकते हैं कि 2 ऊपर से आउट हो गए, पार्टनरशिप नहीं लग सकी, वरना ये 250 पौने 300 तक जाने वाली टीम थी। इस पे हमें क्या लाएमल तैयार करना चाहिए आगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब दोबारा से आई होप कि अगर शादाब फिट हैं, क्योंकि जो आज रिलीज़ किया है पीसीबी ने, उन्होंने यही बोला कि वो ही वाज नॉट कम्प्लीटली फिट इनफ। देखिए, अभी तक हम सुबह भी यही बात कर रहे थे, पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग लाइनअप के 5 बॉलर्स का नहीं पता कि हमने किससे क्या रोल लेना और किससे क्या रोल नहीं लेना। हम फिर अदला बदली पे ही जा रहे हैं। आज नवाज को अगर आप एज एन ऑलराउंडर खिलाते हैं तो आपने उसकी जगह अगर सलमान अली आगा को खिलाया तो आपने आज उसको 1 ओवर भी नहीं करवाया, और आपके पास वो सिचुएशन भी नहीं आई कि वेयर यू कैन गेट हिम टू बॉल, या करवाना चाहिए था, क्योंकि आगे जो 2 मैच हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ, दे आर डिफरेंट टीम्स, दे गोना कम एंड दे गोना अटैक यू। अगर ऊपर से दोबारा विकेट नहीं मिलती तो हमारे स्पिनर्स पे बात आ जाएगी। तो वी आर नॉट, अभी रास्ते में जो मुझे लगता है, वी आर नॉट श्योर कि उसामा को खिलाना है, शादाब को कराना है, नवाज को कराना है, या सलमान अली आगा को कराना है। आई थिंक फ्रॉम हेयर दे शुड थिंक कि ये जो आखिरी 2 मैच हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच। अगर उसामा को खिलाना तो लेट हिम प्ले। अगर अब आप उसको बिठाएंगे फिर कॉन्फिडेंस खराब होगा। स्कोर तो सब सारे बॉलर्स को है, दे जस्ट पिक 2 बॉलर्स और उनको कहें कि यार यू जस्ट गेट अस 10 ओवरों में आप कोशिश करो कि हमें 60 रन नहीं 50 रन के अंदर अंदर आप फिनिश करो, 10 रन हमें सेव कर लो, बेशक आउट नहीं करो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप विकेट नहीं भी ले। इंडिया के बॉलर्स क्या कर रहे हैं, हम अगर इंडिया के स्पिनर्स की एग्जांपल दें, या अगर हम सेंटनर की एग्जांपल दें जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, या जैम्पा की दें, अब वो क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग अवे रन्स। हमारे रन लीकेज बहुत ज्यादा है। हमें रन की जो लीकेज अगर हम उसी को संभाल लेते हैं, दैट इज आल्सो एन इंप्रूवमेंट। जरूरी नहीं है कि आउट करके ये इंप्रूवमेंट। तो हमने सेम नंबर ऑफ स्पिनर्स ही खिलाने हैं, या अगर वसीम और मसला यही आगे यही बात है कि सबसे अच्छी जो स्पिनर से बॉल कर रहे हैं वो तो इफ्तिखार कर रहे हैं जी, या तो इफ्तिखार को खिलाएं सिर्फ। बिल्कुल, हसन अली चौथा आ जाए इस पिच के ऊपर, एग्जैक्टली, कोई मानेगा नहीं। तो मैं ये वो सबसे आई एग्री ऑन इट कि अगर आप हसन को लेके आना चाहते हैं एज अ फास्ट बॉलर, 4th फास्ट बॉलर, ये डिपेंड करेगा ना कि अब आगे आपके मैचेस हैं कहां पर। अब जैसे न्यूजीलैंड के साथ बैंगलोर में, अगर बैंगलोर है वहां पे, अच्छा वहां पे भी रिवर्स हम खेले थे, मेरा ख्याल है हफीज भाई, हम वहां पे, तो वहां पे भी बॉल अच्छा रिवर्स होता है फास्ट बॉलर्स के लिए, वो अच्छा है, बल्ले पे बहुत आता है, बल्ले पे अच्छा आता है, लेकिन वहां पे यू नीड अ स्पिनर एज वेल एट द सेम टाइम। अब आपको ये डिपेंड करना है कि आपको उसामा को अगर आप बिठा देते हैं, देन यू डोंट हैव अ वन रेगुलर स्पिनर, प्रॉपर रेगुलर स्पिनर जो है। और इफ्तिखार अभी तक अच्छी कर रहा है। इफ्तिखार तो आप ये समझ लेना, इफ्तिखार अच्छी कर रहा है तो यू टेक हिम एज द 4th बॉलर, ठीक है, कि ये चौथा बॉलर है। अब जो 10 ओवर है वो किस तरह निकालने, ये कप्तानी पे आएगा कि यार ठीक है हम 3-3 4-4 ओवर करवा के निकाल देते हैं, और अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसको फिर आप थोड़ा सा जिधर 3 ओवर कराने उसको 5 से 6 ओवर करा के मैच को एक साइड पे कर दे। राइट, यहाँ पे बात अगर बॉलिंग की हो ही रही है, क्विकली बीके मैं आपका भी इस पे ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने तो आज आउट स्मार्ट किया ऑपोजिशन को व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, रिवर्स का यूटिलाइज किया, हार्ड लेंथ्स भी बॉल किए, जहाँ जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी जो हमने बात की थी। क्विकली बांग्लादेश के बैटर्स ने इन रिस्पॉन्स किस तरह के, जिस तरह के शॉट्स आज अटेम्प्ट हुए, डू यू थिंक कि वो अंडर प्रेशर थे या बॉलिंग ही इतनी आउट क्लास हो रही थी कि दे वर जस्ट यू नो उनकी शॉट्स जो है वो सक्सेसफुली लग ही नहीं रही थी? वहाब के प्लेयर ने मरवाया उनको वो सबसे अच्छा खेल रहा था, और जो वो जिस तरह आउट हुआ है वो बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट डिस्मिसल था, ऐसे करके मिड विकेट के हाथ में पकड़ा के। उस वक्त उसके मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग उसने संभाल ली थी उस टाइम तक, और वो ऐसे लग रहा था कि शायद वो रन्स निकाले क्योंकि उसको कोई इशू नहीं हो रहा था। वो बड़ी गलत, बांग्लादेश के लिए वो बड़ी गलत डिसमिसल है, क्योंकि वो ना रिवर्स स्विंग पे हुई है, ना कोई बॉल शाहीन शाह का बॉल पढ़ के बाहर निकला है, वो नॉर्मल बॉल हुआ, उसने ऐसे कर खेला और मिड विकेट पे कैच पकड़वा के आ गया। वहाँ से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। जो रिवर्स स्विंग पे आउट हुए हैं शाहीन, और जब रिवर्स स्विंग हो रहा हो तो पाकिस्तान से बेहतर बॉलर्स कोई नहीं ना, तो वो तो आपको मसला है। बट अगर आप वो उसकी डिसमिसल निकाल दें तो फिर रिवर्स स्विंग वो खेलेगा, फिर जो आने वाला है उसको थोड़ा सा और मतलब फिर बाबर फिर सोचेगा कि मैंने फास्ट बॉलर्स के अभी कितने ओवर, अभी तो पाकिस्तान बहुत हावी हो गया, तो फिर तो आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन पूरी होगी ना। वो एक स्टेज ऐसी थी जब लिंटन दास खेल रहा था, मेरे ख्याल महमूदुल्लाह के साथ खेल रहा था, वो स्टेज ऐसी थी कि वहाँ पे अगर वो शायद आउट ना होता तो वो थोड़ा सा बिल्ड कर सके। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें महमूदुल्लाह को बड़ा अच्छा बॉल हुआ, शाकिब तो आउट ऑफ फॉर्म ही लग रहे थे जितनी बैटिंग की, बाद में जाके उन्होंने शॉट्स मारी, उनकी बैटिंग का प्रॉब्लम रहा है।
तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा, हमने पहले भी बात की थी कि ये वाहिद बैटिंग लाइनअप है जिनको पावर प्ले में प्रॉब्लम है, तो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के बॉलर्स के पावर प्ले में आउट करें और पाकिस्तान के पावर प्ले में आउट कर दिए। Exactly, and that's how we certainly seal that victory for Pakistan today as well. हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम बंजान वापस आ रहे हैं, गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की, खास तौर पे ब्रेक पे जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग और किस तरह जो है वो जो अर्ली ब्रेक थ्रू जिसके ऊपर पाकिस्तान के बॉलर्स इतना डिपेंड करते हैं, आज वो मिला और उसी की वजह से जो है बाकी थ्रू आउट एवरी फेज ऑफ द गेम हमने बड़ी टाइट बॉलिंग की, हमने थोड़ी बहुत रन्स वीक ज़रूर हुए, उसके ऊपर भी बात हुई, बट ओवरऑल यूजिंग द स्विंग, यूजिंग द रिवर्स इन दोज मिडल ओवर्स एंड टुवर्ड्स द एंड पाकिस्तान वर इनक्रेडिबल। टुडे इट वाज ऑल, जो इस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग थी, स्पेशली टेल एंडर्स को जल्दी आउट किया उन लोगों ने, पार्टनरशिप्स नहीं लगने दी, रिवर्स हो रहा था, दे टुक द फुल एडवांटेज। सबसे मुश्किल है जो हाईलाइट चल रही है आउट होने की, उस पे कमेंट करना, कमेंट्री करना, वो जल्दी जल्दी आदत है, जल्दी जल्दी करके। क्या बात है सर, जिधर मैंने कह रहा था उधर मैंने कहा पता नहीं किधर चल पड़ा वो सबसे अच्छी जो बॉल है ना उसको डिप हो गई, तेज आई है, तुम्हारे मतलब ये रिवर्स स्विंग आगे से नहीं हाथ ही शुरू हो गई थी। एग्जैक्टली, बट जस्ट टू यहाँ पे आपसे क्विकली एक ओपिनियन मैं लेना चाहती हूँ। हमने काफ़ी बात की थी बिफोर द वर्ल्ड कप एज वेल, जब इंजरीज हो रही थी कि हमें वो बॉलर्स चाहिए जो 50 ओवर फॉर्मेट में बॉल कर सके, जो 10 ओवर का स्पेल, जिनकी फिटनेस जो है, टेम्परामेंट जो है वो इस फॉर्मेट के लिए सूटेबल हो, जहाँ पे हमने जमान खान के बारे में भी काफ़ी बात की थी। सीइंग वसीम जूनियर बॉल टुडे, क्या एनालिसिस है आपकी ऑन हिज सूटेबिलिटी फॉर द 50 ओवर फॉर्मेट? देखें 3 साल से ये इस टीम के साथ है मोहम्मद वसीम, लेकिन अभी तक जो मैं हमेशा अपने यंगस्टर्स को कहता हूँ, मैंने ये लर्न किया विद फ्रॉम माय सीनियर्स, एक होता है सपोर्टिंग रोल प्ले करना, एक होता है हीरो बनना। हीरो वो बनता है जो मैन ऑफ द मैच बने। सपोर्टिंग रोल आप 2-2 3-3 आउट कर रहे हैं, आपने 70 किया, मैच नहीं जीते, किसी और ने 100 किया, उसने मैच जितवा दिया, तो इनके कैरियर में इनको ज़रूरत है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की। जब तक आप वो नहीं लेके आते तब तक आप इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बनते, आप इन आउट होते रहते हैं। अभी तक 3 सालों में ये बात मैंने एक मरतबा वहाब से भी की थी, लेकिन इनको भी शायद बहुत लेट जाके समझ आई कि हमेशा ज़िंदगी के अंदर जो है वो आपका जो इम्पैक्ट डालना है ना, वो ये होता है कि जब आप मैच जीत के दिखाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस उस जोन में रह के हुई है जहां पे मैच जीता जाए जी। तो मोहम्मद वसीम की मैं ये हमेशा समझता हूँ कि इनके पास टैलेंट है, इनका रिवर्स स्विंग करने की, जितने पाकिस्तान के बॉलर हैं हारिस के बाद सबसे ज़्यादा जो रिवर्स स्विंग करने की एबिलिटी विद पेस और जो परफेक्ट यॉर्कर्स हैं रिवर्स स्विंग के, वो मोहम्मद वसीम कर सकते हैं, वसीम जूनियर, लेकिन इनकंसिस्टेंट हैं। वो क्यों हैं? अपनी गेम को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नहीं अगर आप करेंगे तो अगर आप सपोर्टिंग रोल करते रहेंगे तो कोई ना कोई हीरो कहीं ना कहीं बैठ के मेहनत कर रहा है, बिल्कुल वो आ जाएगा। तो मेरा ये हमेशा से ये मानना है कि जब आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और आपको साथ रखा जाए तो वो फिर बदलाव आना चाहिए आपके खेल में। तो वसीम को इस वक्त मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि एक तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि उनको लगातार दूसरा मैच खिलाया गया। आज अगर वो खेले हैं तो आज उन्होंने वो रिवर्स स्विंग का जो यूज़ किया है वो बहुत शानदार है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करें और अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करें और ये मैन ऑफ द मैच बने। जब ये मैन ऑफ द मैच बनना शुरू होंगे तो फिर ये इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम से बाहर नहीं होंगे, अभी इन आउट होते रहते। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जस्ट टू रैप इट अप, अभी तक राशिद भाई, बाजी भाई, सबसे मैं ये एडवाइस जरूर लेना चाहूँगा फॉर ऑल दोज प्लेयर्स हू आर आउट देयर एज वेल, जितने लोग सुन भी रहे हैं, हम अभी तक इस वर्ल्ड कप में अपने कॉम्बिनेशंस फाइनल नहीं कर सके वन वे और दी अदर। जो नेक्स्ट गेम्स है वो हमें मार्जिन ऑफ एरर नहीं देंगी बिल्कुल भी, बेशक हम न्यूजीलैंड के हवाले से भी ज़रूर सोच रहे हैं। आपके ख्याल में अब जो बाकी गेम्स पाकिस्तान की रह गई हैं उनके अंदर कॉम्बिनेशन के चेंजेस को आप देखते हैं, या आपको लगता है कि जिस तरह से हम खेले हैं आज
शायद इसी तरह प्रोसीड करना चाहिए। मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे आज के कॉम्बिनेशन के मुताबिक अगर ये अगला मैच खेलेंगे तो मुझे मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि सलमान आगा बैटिंग एट नंबर 7 एंड नॉट बॉलिंग टुडे, नॉट गिविंग मी इनफ कॉन्फिडेंस टू बॉल आउट न्यूजीलैंड इन फॉर्म टीम, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग को चैलेंज करने के लिए यू नीड टू टेक विकेट। और आप इफ्तिखार इज़ अ वेरी गुड बॉलर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये वाला सिनेरियो आ रहा है कि जहाँ पे आपका 7वें नंबर का या तो शादाब खेले इफ़ ही इज़ फिट, क्योंकि वी एक्सपेक्ट हिम टू बॉल एटलीस्ट 6 to 8 ओवर्स एंड देन ही कैन कंट्रीब्यूट इन द बैटिंग। अगर वो नहीं आते तो सलमान आगा के साथ लेके इसी कॉम्बिनेशन को अगर खिलाया गया तो आई हैव अ डाउट कि पाकिस्तान की बॉलिंग ज़रूर वहाँ पे जो है वो मुश्किल में आ सकती है। जी राशिद भाई, ये छठा बॉलर यूज़ नहीं किया है, बात सही है, सभी ने ये बात की, सलमान अली आगा ने बॉलिंग नहीं की। अगले मैच में अगर शादाब को हम लेके आते हैं पूरे 10 ओवर्स के लिए, तो जिस तरह से आज की है, आज तो सारे आउट हो गए ना। ये जो पार्टनरशिप लगी है तो 12वें ओवर में आ गए बॉलिंग करने उसामा, पार्टनरशिप उसामा की वजह से लगी है। उसके बाद 14वां ओवर किया, 16वां ओवर किया, 18वां ओवर किया, बीच में आके एक विकेट मिलती है जब किसी ने आके, बॉलर का नाम नहीं, वहाँ पे आउट किया है आके। फिर उसके बाद आपके मेन बॉलर दोबारा आ गए। अगर ये विकेट नहीं लेंगे, चाहे उसामा खेलें, चाहे नवाज़ खेलें, चाहे शादाब खेलें, प्रॉब्लम रहेगी। इफ्तिखार को यूटिलाइज़ किया, बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आज जो यूज़ कर रहे हैं, आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से बनाएंगे जब आप 5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं, जिसमें इफ्तिखार ने 10 ओवर किए हैं, किस तरह से खेलेंगे? मैं तो कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। सलमान अली आगा या कोई ऐसा बॉलर, आपने सऊद शकील से 2 ओवर करवा देते आज, तो ये फ़खर जमान बॉलिंग करता है। इस टीम में जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, पूरे साल देख लें, 2 साल में कितने ओवर्स किए इन्होंने, मुश्किल है। तो किसी को तो कि आप ज़रूरी नहीं है कि उनको 10 ओवर 5 ओवर कराने हैं, लेकिन रेडी आपको करना पड़ता है, कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी भी। आज आपके पास एक बॉलर था, उससे बॉल नहीं कराई, तो फिर थोड़ा सा जैसे ये बात की, वहाब ने बात की। एग्जैक्टली। बाजिल भाई, व्हाट अबाउट यू? देखिए, मैं तो अपने 6 महीने से मौक़िफ़ पे कायम हूँ जी। शादाब को आप बैटिंग ऑलराउंडर खिलाएं, सलमान अली आगा की जगह शादाब को खिलाएं, और बीच में आप उसामा मीर की जगह हसन अली को खिलाएं। इफ्तिखार और शादाब आपके स्पिनर बनते हैं, 5वां बॉलर बनता है, उससे आप 5 7 जितने भी ओवर करवाने हैं वो पूरा करें, लेकिन आप शादाब पे ये ना करेंगे जी शादाब ने 10 ओवर करने, उसको बैटिंग ऑलराउंडर खिलाएं। ठीक है, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सो टू रैप इट अप एज वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ से कोलकाता से हम आपको लिए चलेंगे पुणे, जहाँ पे कल की गेम विल बी अ scintillating game once again to witness. So I think let's take a good look, Roha. Which 2 teams will be coming across each other to lock their horns tomorrow in Pune? Well, it will be New Zealand and South Africa. It's going to be a tough contest, no doubt about it as well. Roha, what do you have to say about it? I think it will be a game that nobody will want to miss. Shahzad, New Zealand looking dominant as ever. Bowlers देख लें आप, उनके top order के batters देख लें. On the other hand, South Africa playing completely different brand of cricket in this World Cup, so it will be an exciting contest. But यहाँ पे मुझे लगता है time up हो गया to announce the winner of J. Question of the day. Take it away, शहजाद, कौन है? Exactly. So ladies and gentlemen, आज सुबह में हमने आपसे सवाल पूछा था J. Question of the day में कि आज का प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा। आई थिंक एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ इट एज वेल। प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में उसका हमने बात कर दी थी। जो खुश नसीब हैं, जो जे डॉट की जानिब से ये रूलर परफ्यूम जीते हैं ख़वातीन और ज़ात, उनका नाम है अख्तर और उनका ताल्लुक है इस्लामाबाद शहर से। बड़ा ही खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत हैं। इंशाल्लाह आगे चलते हुए जहाँ जहाँ शहर की बात होगी हम ज़रूर बात करेंगे। सरगोदा के फ्रूटर की बात हो चुकी है हमने, और आज वो आलू की सर वो क्या सब्जी का खाना जल्दी करो है, वो तो इंडिया की बात, वो इंडिया की थी। आज भाईजान सबसे मजेदार बात ये कि आप लोगों के लिए हरीसा मंगवाया सर। मैंने नहीं, वहाब भाई ने, तो इनके लिए भी ताली होनी चाहिए। हम सब हरीसा खा ले, इसीलिए आपने एयर टाइम वहाब को ज्यादा दिया। आज बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, वरना इससे पहले वहाब भाई भी नहीं बोले। लेकिन ladies and gentlemen, I think this is it for today. So thank you so much, gentlemen, for being with us on Game On है. I think we're all we will be ending this show on a positive note, and of course taking away जितनी भी आज की learnings थी for the Pakistan game, reflecting on those and coming back in the next one, especially to कल सुबह की game है. We all need to go have some dinner now, refresh our minds. Harisa, but thank you आप सबका for watching Game On है. We will be back tomorrow morning for the pre-match analysis for this big match. अपना ख्याल रखिएगा and do tune in tomorrow to PTV Sports. Game On. Game On है।